الرحمن الرحیم۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اس جاگیردارانہ جمہوریت میں، اور یہ جاگیردارانہ جمہوریت جب بھی ہوتی ہے تو بنیادی جمہوریت ملک میں نہیں ہوتی ہے، اور یہ بھی کیا المیہ ہے کہ جب بھی آمریتیں آتی ہیں تو یہ بنیادی جمہوریت کسی نہ کسی شکل میں آپ کو نظر آ جاتی ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں سو کالڈ الیکٹڈ حکومتوں نے تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ کو تسلیم ہی نہیں کیا ہے، نہ کبھی الیکشن کروایا تھا۔ پچھلے دنوں اعلیٰ عدالتوں کی دباؤ کی وجہ سے جو بلدیاتی الیکشن مجبوراً کرانا پڑے، وہ خود توہین تھی کسی بھی طرح کی جمہوریت کی، اور خاص طور پہ تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ جو کہ عام پاکستانیوں کو اس کا حق، بنیادی حق، وسائل اور جمہوریت کے ثمرات دہلیز تک پہنچانے کی ذمہ داری رکھتے ہیں۔ دباؤ کی وجہ سے، عدالتوں کے حکم کی وجہ سے پچھلے دنوں پچھلی بلدیاتی حکومتیں قائم ہوئی تھیں۔ ایک دفعہ پھر اسی طرح کا دباؤ ان نام نہاد جاگیردار جمہوری لوگوں کے پاس موجود ہے۔ تو اس حوالے سے سب سے بدترین تاریخ سندھ کی ہے، جہاں کے مکمل طور پر جاگیردار سیاستدان، جاگیردار حکمران، انہوں نے اس کا مذاق بنا کے رکھ دیا ہے۔ اور اس دفعہ جو ایک تقاضا ہے شفاف الیکشن کا، اس میں حلقہ بندیاں بھی آتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو سلام کہ اس نے اپنی تاریخ کو تبدیل نہیں ہونے دیا ہے۔ اپنی نفرت، نسل پرستی، لسانیت کو ہی بنیاد بنایا ہے اس دفعہ بھی سندھ کے اندر ہونے والی حلقہ بندیوں کے حوالے سے۔ اب اپنے اسی جاگیردارانہ مزاج اور جاگیردارانہ نظام کو تحفظ دینے کے لیے انتہائی متعصبانہ، غیر اخلاقی، غیر قانونی، غیر اصولی، غیر جمہوری اور غیر قانونی قسم کی حلقہ بندیاں کی گئی ہیں۔ شکر ہے کہ ان کو گزشتہ 30-35 سال سے متحدہ قومی موومنٹ جیسی جماعت کا سامنا ہے، جس نے اپنی احتجاج اور جدوجہد کا راستہ ریکارڈ پہ رہے کہ درست ترجیحات کے ساتھ رکھا ہے۔ ایسے تمام قانونی معاملات کو کہ جس کا فیصلہ عدالتوں کو کرنا ہے، ہم سب سے پہلے عدالتوں کے پاس آئے۔ ایسے تمام معاملات جس کے لیے قانون سازی کی ضرورت رہی ہے، ہم ایوانوں میں گئے ہیں، اور اس کے بعد اگر ووٹ فیصلہ نہیں کرتا، اگر ایوان فیصلہ نہیں کرتا، تو مجبوراً روڈ پہ آیا جاتا ہے۔ ہم ایک بار پھر اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا اعتماد عدالتوں پہ آج موجود ہے۔ پاکستان کی عوام کا مکمل اعتبار اور اعتماد ابھی اعلیٰ عدالتوں سے اٹھا نہیں ہے۔ سو اسی لیے ہم آج پھر عوام کی عدالت کی دہلیز پر موجود ہیں، تاکہ عوام کی دہلیز تک آئین، قانون، انصاف اور جمہوریت کے ثمرات پہنچے۔ اس دفعہ پھر سندھ کے شہری علاقوں کو، جو پاکستان پیپلز پارٹی کی 50 سالہ تاریخ کی وجہ سے، وہ علاقے جو پاکستان کے نظریاتی طور پہ پاکستان کے ماتھے کے جھومر تھے، اس مانگ کو اجاڑنے میں لگی رہی پاکستان پیپلز پارٹی۔ وہ علاقے جنہوں نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ 70 سال تک اپنے خون پسینے کی کمائی، اپنے حلال کی کمائی، اپنے ٹیکس، اپنی محنت، اپنی انڈسٹری، اپنی تعلیم
अपनी वफादारी के तमाम सबूत के साथ पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान की माशरत को, पाकिस्तान की तरक्की और तामीर को, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा को मजबूत रखा है। आज जितनी भी पाकिस्तान में खुशहाली है इसी शहर की बुनियाद पर है। आज पाकिस्तान का जितना भी और जैसा भी इस्तेहकाम है इसी शहर के लोगों की वफादारी का देन है। आज पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ में अगर इस शहर का टैक्स शामिल ना हो तो बहुत बड़ी मजबूरियां हो जाएं। आप एटम बम से लेकर और बड़े बड़े तालीमी इदारों तक सब पे इस शहर का एहसान अजीम है। लेकिन इन सिंध के शहरी इलाकों की सबसे पहले तो ये रिवायत भी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के आने के बाद पड़ी है। ये नफरत के इक़दाम भी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के आने के बाद पड़े हैं कि जिसने अपने आने के बाद पहले कोटा सिस्टम लगाकर सिंध को इंतजामी तौर पे तकसीम किया, फिर लिसानी बिल लगाकर सिंध को लिसानी तौर पे दो हिस्सों में तकसीम किया, फिर इन सूबों सिंध के इन शहरी इलाकों के वसाइल को लूट कर अमली तौर पर तकसीम कर दिया। हमने अपने हिस्से से ज्यादा वाली कुर्बानी दी है। इस सूबे के अफराद और मुस्तकिल बसने वाली दो इकाइयों के दरमियान गलत फहमियों और नफरत की खलीज को पाटने की, कम करने की, खत्म करने की मामलात को इस नहज पे पहुंचा दिया है और इनकी नफरत और नस्ल परस्ती का सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है। आज भी हम मजबूर होकर यहाँ पर आए हैं जमहूरियत बचाने के लिए भी, पाकिस्तान की आवाम का जमहूरियत पे एतबार बचाने के लिए भी और ये बताने के लिए भी कि अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी है जैसी भी है अदालतें थोड़ी बहुत तो आज़ाद हैं, तो इसका मकसद है पाकिस्तान कम से कम थोड़ा बहुत तो आज़ाद है। तो आज हम आए फिर यहाँ पर इन्हीं हल्का बंदियों के हवाले से जिसमें बहुत भयानक किस्म के तमाम आइनी, कानूनी और इंतखाबी जो तरीक़ेकार है उसकी खिलाफ वर्जी की गई। जी जनाब। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि ये वडेरा जमहूरियत है, 30-35 साल से आप इन्हीं जमहूरी हुकूमतों का साथ ही देते हैं लेकिन इन पर तनकीद भी करते हैं, तो अभी भी आप चाहते हैं ऐसा साथ दिया जाए कि तनकीद ना की जाए। जी, अभी भी आप एक जमहूरी हुकूमत के पोजीशन है लेकिन वो भी नहीं चाहते बल्दियाती इलेक्शन केपी के अगर उन्होंने इलेक्शन कराया तो सुप्रीम कोर्ट से मजबूर होकर इलेक्शन कराए। पंजाब में उन्होंने जो बल्दियाती इदारों का हालत की है वो आपके सामने, फिर भी आप इन पर तनकीद करते हैं। तो भाई आप पाकिस्तान में हम जब इलेक्शन जीतते हैं और 30-35 साल से इन शहरों में जीत रहे हैं, इन शहरों में जिनका मैं जिक्र कर रहा था कि जिनके बगैर तनख्वाहें नहीं निकलती हैं वजीर आजम और सदर की भी, जिनके बगैर बोल दूंगा बहुत सारी चीज़ें फिर मुल्क छोड़ के जाना पड़ेगा, तो वो उसके बावजूद आज पाकिस्तान के ऐवान पर हमारा एहसान है कि उसका एक टुकड़ा ऐसा है जहां पर लोअर मिडिल क्लास के लोग बैठते हैं। हाँ, अगर आप इन जागीरदार जमातों को ख़त्म कर दें जनाब, क्या लेबर पार्टी के साथ, कंजर्वेटिव पार्टी के साथ, डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ, रिपब्लिकन पार्टी के साथ या अवामी लीग के साथ इत्तेहाद करने हैं क्या हमें पाकिस्तान में? जो आपने जिन लोगों को बनाया और चढ़ाया है, हमने इस दफ़ा भी और कई दफ़ा हम ना होते और साथ ना देते हुकूमतें नहीं, जमहूरियतें भी नहीं बचने वाली थी, जैसी भी थी और जितनी भी थी। ये है हमारा यकीन, ये है कि हमारा ये पैगाम कल पहुंचेगा तो जेन्युइन जमहूरियत भी आ जाएगी। फिर किसी पीटीआई ने कराची की नुमाइंदगी करते हुए ग्रीन लाइन बसें दी है और K4 का मंसूबा किया, एमक्यूएम ने क्या डिलीवर किया जो कराची के शहरियों के साथ? जनाब एमक्यूएम के कहने भी किया ना, एमक्यूएम के मुआहदे का हिस्सा बड़ी नुमाइंदा तंजीम है सर, कौन? पीटीआई। जी है ना, जी है, लेकिन बस हम है और हम बड़ी मोहब्बत से वजीर आजम से कहते हैं आप तो सबसे बड़ी कराची की स्टेक होल्डर हैं, आपकी सबसे बड़ी नुमाइंदगी है, तो आपको याद भी रहना चाहिए कि कराची में सबसे बड़ा मैंडेट आपका है।
तो ये वो तो सारे मुआहदे हैं जो सारे के सारे, और हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इस पे जितने नुकात थे उस पे से अक्सरियत पे फैसले हो रहे हैं, गो के उसकी रफ्तार अजियतनाक हद तक स्लो है, लेकिन हम वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करते हैं और MQM के कारकुनों को खराज तहसीन पेश करते हैं, शाबाश देते हैं कि जिनकी जद्दोजहद की वजह से जो जाली मरदमशुमारी थी उसकी जगह एक और जब अर्ली मरदमशुमारी हो रही है। ये वाला जो आप ग्रीन लेन कहते हैं, ये तो हम जब अपोजिशन में थे ना जनाब, जब शाहिद खाकान अब्बासी वज़ीर आज़म हुए थे तो हमने उस वक्त भी मनवा लिया था, उन्होंने उसका संगे बुनियाद रखा था, पैसे रखे थे। हैदराबाद की यूनिवर्सिटी जो बन रही है ना, वो भी हम शुक्रिया अदा करते हैं वज़ीर आज़म का कि उन्होंने बात आगे बढ़ाई है। ये भी हमने शाहिद खाकान अब्बासी जब थे ना वज़ीर आज़म, हमने जब कराई थी। बहुत बहुत शुक्रिया PTI का भी और वज़ीर आज़म के भी कि हमसे जो मुआहिदा किया था उस पर किसी न किसी तक अमल दरामद हो रहा है। जी कल नवाज शरीफ ने आपका 90 बंद किया, सेक्टर सारे बंद किए, दफ्तर बंद किए, क्या मजबूरी थी कि आप उसकी यात्रा पे जाके पहुंचे? किसकी यात्रा पे? शहबाज शरीफ के घर गए और ये जी। भी बता दीजिएगा ऐसी क्या मजबूरी थी आपकी? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आप वफाकी हुकूमत से उकता गए हैं या वफाकी हुकूमत आपसे उकता गई आके अपोजिशन से मिलना वो हमसे उकता नहीं सकती, उकताने की बारी हमारी आ सकती है। ठीक है जी। चाहिए? ये बताएं, ये नवाज शरीफ के हवाले से अरे नवाज शरीफ के हवाले से हम वो बता दिए ना कि हम इनकी बारियां नहीं लगाते हैं, इनकी बारियां कहीं और से लगती हैं। तो ये क्योंकि वोट तो पड़ रहे हैं ना, सियासी कुव्वतें गलत या सही, सियासी कुव्वतें हैं, चाहे मौरूसी तरीके पे, मौरूसी सियासत के हम खिलाफ हैं, उनको मौरूसी सियासत के बावजूद वोट मिलते हैं। तो हम तो एक ऐसी सियासी जमात है जो कि मुंतखब होती रही हैं, अवामी मैंडेट रखती हैं, उनके मैपेक्ट देने जाते हैं। जी खालिद साहब, दो चीज़ें हैं आपसे पूछनी। एक तो इस मुल्क को जो रियासत मदीना बनाने वाले थे, आज उनका एक बड़ा झूठ पकड़ा गया है, जिसमें फैसल बाडा को घायल करार दिया गया और कहा गया है कि इसने झूठ बोला। दूसरा ये कि अभी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए काफ़ी मूव शुरू हो गई है, आप किसका साथ दें? हम तो अपने कॉन्फिडेंस के साथ मौजूद हैं, हम जमहूरियत का साथ देंगे। ठीक है, बाडा साहब का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो इस लिहाज से पाकिस्तान अदालतों के फैसले हैं और अदालतों को अफराद को देखे बगैर इंसाफ करना चाहिए। तवील अरसे बाद ऐसी क्या जरूरत पेश आई कि नून लीग से दीगर जमातों से मिलने की? तभी रस्ते के बाद मिलते रहते हैं, आपकी मेहरबानी आपके मीडिया ने ज़्यादा कर दी है तो नजर आ रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुल्क की सूरत हाल तो आपके सामने है, हुकूमत के खिलाफ एक मूवमेंट चलना शुरू हुई। कल आप जैसे मियां शहबाज शरीफ साहब से मिले, इसी तरह पीपल्स पार्टी से भी दूसरी सदर मुमलिका से भी मिले हैं वहाँ, जी सदर मुमलिका से भी मैं मिले। अर्ज कर रहा था कि आप हुकूमत के साथ जाएंगे इन फ्यूचर अगले चंद दिनों में या अपोजिशन के साथ आएंगे? अवाम के साथ जाएंगे। दो लॉन्ग मार्च शुरू हो रहे हैं 27 फरवरी को और 23 मार्च। दोनों के साथ जाना MQM की कोई मजबूरी नहीं है। ठीक है, दोनों के साथ जाना MQM की मजबूरी नहीं है। आप PTI में ही रहेंगे? हाँ, PTI के साथ रहेंगे? ये इसका फैसला भी PTI ने करना है। अगर उसने वो बहुत सारे ऐसी चीज़ें की जिससे पाकिस्तान की जमहूरियत को और आवाम के हुकूक पर जद पड़ती है, तो हमें अपना फैसला करने में आज़ाद है। बहुत बहुत शुक्रिया।